Good morning, students. How are you? I am fine. So, myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, in this lecture, just we are going to start a new concept for the JEE main and advanced exams. Okay, application of differentiation. That means those chapters are very much complicated, and I think most of the students are facing a lot of problems regarding this regarding these topics and regarding these chapters, and that's why just I have started one by one these tough chapters as well. Okay, so from this application of differentiation chapter, okay, in this chapter just the first concept is the rate of measures. किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज होता है. चैप्टर का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट मींस डिफरेंशिएशन ये जो कॉन्सेप्ट है कहां कहां पर यूज होता है वो इस चैप्टर में डिस्कस होगा. दैट मींस practically where that you can use this differentiation concept, that will be discussed in this chapter. Okay, so the first concept is rate of measures. रेट किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी काम का अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे यहां पर डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा. अब बोलोगे सर यहां पर रेट कैसे निकाले, कैसे समझ में आए ये रेट है? क्योंकि देखो जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिफरेंशिएशन चैप्टर जो डिस्कस किया है ये जस्ट इन द रेगुलर क्लासेस 12th रेगुलर क्लासेस, जस्ट सी द लेक्चर where this in which actually this differentiation concept were discussed. Okay, so just you can see the lecture. Okay, just I think lecture number 1 from the differentiation concept, that you can see the lecture. Okay, then you will get the idea that this rate, what does it mean? That means the differentiation of any function, what does it mean actually? If you want to differentiate some function, then what will be the outcome? Okay, that will be cleared in this lecture number 1, differentiation chapter. Okay, this is the regular classes lecture. This is not the JEE main and advanced level. Actually, these questions were not solved in that lectures, but the discussion was there. That you can see the discussion here. You can just view the lectures, and I think you will get the idea how to solve this type of questions and how you can exclaim as the rate of any function. Okay, so यहाँ पर कोई भी काम आउटपुट चेंज हो रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा है, खुद तो यहां पर आउटपुट तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो कोई भी काम का आउटपुट अगर चेंज होता है किसी के रेस्पेक्ट में, यही तो रेट है, यही रेट है ना. जैसे यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स ये रेट है. किसका रेट? डिस्टेंस का रेट. डिस्टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो कोई भी चीज, कोई भी काम का आउटपुट अगर चेंज होता है किसी के रेस्पेक्ट में, तभी तो वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है. तभी तो वो क्या होता है? रेट होता है. दैट मीन्स रेट और डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट बोथ आर एक्चुअली सेम. Just if you are finding the differentiation of particular function, then indirectly just you are finding the rate of change of that particular function. That means the value of this function is changing with respect to some value. Just you are going to find that concept indirectly. यहाँ पर आउटपुट चेंज हो रहा है किसी भी फंक्शन का with respect to some input values. ओके, सो इनपुट वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट वैल्यूज का चेंजेस यहां पर निकाल रहे हो, वहां पर ही डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. जस्ट सी द लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर. ओके, इन दैट डिस्कशन आई थिंक यू विल गेट द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिफरेंस एक्चुअली दिस ऑफ ए फंक्शन यूजिंग द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट. ओके, सो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस यहां पर कलेक्ट किया है from the previous year questions and from the different books, okay, just which are very very important for this JEE main and advanced exams. Okay, just let me discuss one by one. Okay, just write the first question. On the curve x cube equals to 12y, on the curve x cube equals to 12y, on the curve x cube equals to 12y,
find the interval of values of x. Find the interval of values of x on the curve x cube equals to 12y. Find the interval of on the curve x cube equals to 12y. Find the interval of x for which the abscissa changes of a faster rate than the ordinate. यहां पर एब्सिसा मतलब क्या जानते हैं हम लोग? एक्स, जो वैल्यूज ऑफ एक्स रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा ना, कोई भी पॉइंट हो उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको बोला जाता है एब्सिसा. ओके, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट. ओके, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा. तो यहां पर एब्सिसा मतलब एक्स और ऑर्डिनेट मतलब वाई. तो यहां पर बोला गया फॉर विच द एब्सिसा चेंजेस. दैट मीन्स एब्सिसा के अंदर डिफरेंस आ रहा है. दैट मीन्स dx. एब्सिसा के अंदर क्या आ रहा है? डिफरेंसेस आ रहा है, चेंज आ रहा है. दैट मीन्स वैल्यू के अंदर तो डिफरेंसेस आएगा. dx चेंजेस ऑफ ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट. दैट मीन्स ऑर्डिनेट भी यहां पर चेंज हो रहा है, dy है कि नहीं. अब बोला गया x चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, बट x थोड़ा फास्टर चेंज हो रहा है. दैट मीन्स थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है. दैट मीन्स यहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये x चेंज हो रहा है फास्टर देन. दैट मीन्स x ज्यादा चेंज हो रहा है y से. दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो x चेंज हो रहा है ज्यादा, देखो फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, मतलब y से x ज्यादा चेंज हो रहा है. तो दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं ना, x ज्यादा चेंज हो रहा है y से, तो वहां से dx बाई dy ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली. अच्छा, ये लिख रखो. गिवन कार्व, यहां पर आपको निकालना क्या है? यहां पर आपको फाइंड द इंटरवल ऑफ x. दैट मीन्स x का वैल्यूज निकालना है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, दैट यू हैव टू फाइंड द इंटरवल वेयर दिस वैल्यूज ऑफ x लाइज. ओके, सो गिवन x क्यूब इक्वल्स टू 12y. तो यहां पर देखो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू dy बाई dx. ठीक है, सो यहां पर देखो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx क्या होगा? 3x स्क्वायर बाई 12. तो यहां पर तो आपको dx बाई dy चाहिए ना, तो बोथ साइड dx बाई dy दैट मीन्स 12 बाई 3x स्क्वायर. तो दैट मीन्स dy बाई dx का वैल्यू 12 बाई 3x स्क्वायर निकल रहा है. अच्छा, तो यहां पर dx बाई dy 12 बाई 3x स्क्वायर दैट मीन्स 4 बाई x स्क्वायर. अगर यहां पर x का वैल्यू 0 पुट कर दे हम लोग, dx बाई dy का वैल्यू क्या डिफिनिट आएगा? आई डोंट थिंक सो. x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, dx बाई dy तो यहां पर अनडिफाइंड हो जाएगा. दैट मीन्स इन्फिनिटी आएगा आंसर. तो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं. एक्सेप्ट 0 एनीथिंग कैन बी पुट हियर. ओके, अच्छा, सो dx बाई dy इक्वल्स टू 4 बाई x का निकला. अब इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 देख रखो. अब फ्रॉम 1 चले जाओ. फ्रॉम
1 क्या आ गया, dx by dy ग्रेटर देन 1. सो dx by dy मतलब 4 by x square ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स 4 डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही आएगा. सो दैट मीन्स x स्क्वायर लेस देन 4. सो x स्क्वायर लेस देन 4 मतलब क्या होगा, -2 लेस देन x लेस देन 2, ऐसा कुछ आएगा, है कि नहीं. सो दैट मीन्स यहां पर x का वैल्यू कहां पर बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -2, बट एक्सेप्ट 0. दैट मीन्स x का वैल्यू इंटरवल क्या निकल रहा है, -2 और 2 इसके बीच तो 0 भी आता है ना, तो 0 तो यहां पर चूज नहीं कर सकते हो, तुमने फर्स्टली यहां पर बोल दिया है, तो दैट मीन्स 0 को तुम एक्सक्लूड कर दोगे यहां से. ठीक है. सो दैट मीन्स x का इंटरवल निकला क्या, माइनस ओपन इंटरवल -2, माइनस सिंगलटन सेट 0. सो दैट इज द इंटरवल ऑफ x. ओके, वेरी सिंपल है. जस्ट आपको ये यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर ये चीज ही यहां पर इंपॉर्टेंट है. देखो, रेट देन द ऑर्डिनेट, यही मेन चीज है. ठीक है. और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहां पर रखना पड़ेगा. किसी भी वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डिफरेंसेस आ रहा है. dx, x का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है dx, y का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है dy, p का वैल्यू चेंज हो रहा है dp, वॉल्यूम का वैल्यू चेंज हो रहा है दैट मीन्स dv, एरिया का वैल्यू चेंज हो रहा है दैट मीन्स ds. ऐसे. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. देखो, a man 1.6 मीटर हाई, a man 1.6 मीटर हाई. जस्ट लिखो सेट क्वेश्चन नंबर 2. a man 1.6 meter high, a man 1.6 meter high walks at a rate, a man 1.6 meter high walks at a rate 30 meter per minute. Okay, away from the lamp, away from a lamp. ठीक है. which is 4 meter above the ground. दैट मीन्स लैंप का हाइट यहां पर 4 मीटर है. इनडायरेक्टली यहां पर बोला गया और कुछ नहीं. अबव द ग्राउंड, हाउ fast the shadow of this man changing. ठीक है. तो दैट मीन्स यहां पर देखो, एक जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग को यहां पर लगाना पड़ेगा. ठीक है. सपोज ये लैंप है. ठीक है. यहां पर मैं खड़ा हूं. अब लैंप से तुम प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो. देखो, मेरे पीछे ये लैंप है. ठीक है. तो लैंप से मैं जितना दूर जाऊंगा, लैंप यहां पर है, यहां पर तुम खड़े हो, तो तुम्हारा शेडो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है कि नहीं. अच्छा, तो तुम जितना दूर जाओगे लैंप से, तुम्हारा शेडो का जो लेंथ है वो लेंथ का छोटा होगा या लंबा होगा, ऑब्वियसली लंबा होगा. जितना तुम पास आओगे लैंप का, तब आपका शेडो छोटा होता रहेगा. जनरल कॉन्सेप्ट है. देखो, ये लैंप है मेरे पीछे, मैं लैंप से जितना दूर जाऊंगा मेरे शेडो का लेंथ उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना मैं लैंप के पास आऊंगा उतना ही शेडो का लेंथ कम होता जाएगा, है कि नहीं. जनरल कॉन्सेप्ट है. तो दैट मीन्स यहां पर देखो बोला गया, ये जो मैन है ये लैंप से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द लैंप, दूर जा रहा है. दैट मीन्स उसका शेडो का लेंथ भी इंक्रीज होता रहेगा. तो वही आपको निकालना है कि शेडो यहां पर किस रेट से चेंज हो रहा है, वो आपको निकालना है. और ये लैंप है, ये इंसान है. अब ये जो मैन है ये कितना स्पीड से दूर जा रहा है. यहां पर लैंप है, ये पैदल चल के दूर जा रहा है ना, तो इसका वॉकिंग स्पीड कितना है, दैट इज गिवन. जस्ट वॉकिंग स्पीड दिया हुआ है, देखो
30 मीटर पर मिनट। उसको अगर मैं थोड़ा फिगर में ड्रॉ करूं, देखो ये है लेंथ, ये है तो 20। अब देखो ये है इंसान, उसका लेंथ क्या है, हाइट 1.6 मीटर और इसका लेंथ 4 मीटर। अब ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये है दोनों के बीच डिस्टेंस। तो ये जो है मैन दूर जा रहा है, ये जो लेंथ है उसको हम लोग ले लेते हैं x, और शेडो का जो लेंथ है उसको ले लेते हैं y, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां पर ये इंसान क्या है, मूव अवे, जस्ट ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंड। दैट मीन्स ये जो है इधर जा रहा है कि नहीं। तो दैट मीन्स x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका x का लेंथ बढ़ेगा या फिर कम होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो बढ़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, देखो मिनट दिया हुआ है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में यहां पर बढ़ रहा है। दैट मीन्स dx by dt इक्वल्स टू 30 मीटर पर मिनट। तो यहां पर जितना यहां पर ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही शेडो का लेंथ भी बढ़ेगा। दैट मीन्स dy by dt निकालना पड़ेगा आपको यहां पर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द मैन एंड हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो ये लिख लो, नाम दे दो A, B, C और D, ठीक है। E here lamp height equals to 4 meter, man's height equals to 1.6 meter. Okay, let BC equals to x, CD equals to y. Given, देखो यहां पर ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये away from the lamp, man walking away from the lamp at the rate of this. That means इंसान जो है वो दूर जा रहा है लैंप पोस्ट से। That means ये लेंथ बढ़ रहा है। That means dx by dt टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो हो रहा है, देखो पर मिनट दिया हुआ है। तो dx by dt इक्वल्स टू क्या है, 30 मीटर पर मिनट। ओके, dy by dt हम लोग को यहां पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दैट द शेडो ऑफ दिस मैन इज चेंजिंग, शेडो का चेंजिंग रेट यहां पर मुझे निकालना है कि नहीं। और बस, और तो कुछ नहीं है। अब यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व करना है, देखो ये जो है सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। देखो ये एक ट्राइंगल है कि नहीं, ये एक ट्राइंगल है ना, ये भी एक ट्राइंगल है। अब दोनों ट्राइंगल में से देखो ये एंगल जो है वो कॉमन आता है। सो बाय ए प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी, ओके, ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्राइंगल एबीडी एंड सी, ट्राइंगल CDE आर सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस ट्राइंगल का हाइट बाय इस ट्राइंगल का हाइट, दैट मींस AB बाय EC, और इसका बेस, दैट मींस इसका बेस क्या होगा, लंबा वाला का BD और CD। बस AB का लेंथ पता है तुम्हें 4, EC का लेंथ 1.6, BD मतलब यहां पर क्या होगा x प्लस y, CD मतलब y, ठीक है। बिठाओ यहां पर, बिठा दो, देखो क्या आता है। डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4y इक्वल्स टू 1.6x प्लस 1.6y। सो यहां पर आएगा 2.4, ठीक है, 2.4y इक्वल्स टू 1.6x। अब बोथ साइड देखो y और x तो है, अच्छा मुझे निकालना क्या है, dy बाई dt का वैल्यू निकालना है। अब मुझे तो यहां पर x और y मिला, तो dy बाई dt कहां से मिलेगा, अगर मैं बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं,
that means dy by dt 1.6 into dx by dt. dx by dt का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, बिठा दो और dy by dt का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, है कि नहीं? तो लिख लो, 2.4 into dy by dt equals to 1.6 into 30, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर dy by dt equals to 1.6 into 30 by 2.4, ठीक है? तो ये होगा 0.2, यहाँ पर ये एक काम करो, पॉइंट कैंसिल कर दो ना, यहाँ पर ये पॉइंट कैंसिल कर दो, 2 3 10, दैट मीन्स dy by dt निकलेगा 20 मीटर पर मिनट। दैट मीन्स शेडो का लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा है? 20 मीटर पर मिनट स्पीड में चेंज हो रहा है कि नहीं? ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट let x be the length of the equal sides of the isosceles triangle. Let x be the length, isosceles triangle का दो इक्वल साइड होता है, अब दोनों इक्वल साइड का लेंथ x x दिया गया है। Let x be the length of equal sides of isosceles triangle, okay, and theta be the angle between them. And theta be the angle between them. Theta be the angle between them. That means जो ये दो इक्वल साइड दिया गया ना, वो दोनों इक्वल साइड के बीच एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है? अच्छा, फिर if dx by dt equals to 1 by 12 meter per hour and d theta by dt equals to pi by 180 radian per hour, then find the rate of the triangle, then find the rate of area of triangle when x equals to 12 meter and theta equals to pi by 4. Very important question. Okay, so here the isosceles triangle is given, and as you all know that isosceles triangle have two equal sides, and this two equal sides length is x meter. It is given, x is given. Okay, after that the equal sides are changing, that means their lengths are changing. That means किसके रिस्पेक्ट में? Just you can see the rate of change is given minute per hour. That means time के रिस्पेक्ट में. That means the length of the equal sides are changing with respect to time, which is given in the question also. dx by dt equals to 1 by 12 meter per hour. Okay, and after that the angle between these two equal sides, that means E angle. Okay, this angle is theta. Theta be the angle between them. थीटा है, ये ऊपर का जो दो एंगल है इक्वल साइड्स के बीच जो एंगल है वो थीटा है. डी थीटा बाई डी टी ये भी गिवन है.
नाउ यू टू फाइंड द रेट ऑफ द एरिया, ट्राइंगल के एरिया जो चेंज हो रहा है ना, मतलब कितना रेट से यहां पर एरिया चेंज हो रहा है जब when x equals to 12 और थीटा equals to π/4 हो तब। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहां पर थोड़ा एक फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सपोज ये इक्वल साइड्स हैं, ये भी x है, ये भी x है, और ये एंगल यहां पर थीटा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब एरिया रिलेटेड बात है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, तो ये होता है हाइट है, ये हो जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है कि नहीं? ठीक है, सो हियर अच्छा यहां पर एक एक करके लेंथ ऑफ equal sides equals to x meter. dx by dt equals to 1/12 meter per hour. d theta by dt equals to π/180 radian per hour. Now, area of ABC, triangle ABC equals to half into, नाम दे दो, डी दे दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो मतलब एक्स है और हाइट क्या है सी डी। इक्वेशन नंबर 1 देके रखो उसको, और एरिया जो है एक काम करो उसको ए नाम दे दो। ओके, ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये है एक्स, है कि नहीं, हाइट सी डी है। नाउ फॉर ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि एंगल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपको तो यही सब यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कुडंट गेट द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मींस CD बाय AC। सो दैट मींस CD इक्वल्स टू, आई थिंक AC तो मतलब यहां पर x है शायद, सो x साइन थीटा, लो निकल गया। हाइट मतलब क्या है x साइन थीटा। सो फ्रॉम 1 जाओ, फ्रॉम 1 में जाओ। सो फ्रॉम 1 a equals to half into x sin theta. That means a equals to half x square sin theta. हो गया? बस अब तो तुम्हें निकालना है क्या, यहां पर निकालना है क्या, dA by dt निकालना है कि नहीं, dA by एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। सो बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dA by dt इक्वल्स टू हाफ बाहर आ जाएगा और इधर ddt ऑफ x स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बस ये ddt है, ddt बस u इंटू भी यूज करो, हाफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आएगा, प्लस साइन थीटा ट्वाइस एक्स डी एक्स बाई डी टी, और यहां पर डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू गिवन है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू गिवन है, पुट करो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, दैट मींस पाई बाई 180 प्लस साइन थीटा इंटू ट्वाइस एक्स, और डी एक्स बाई डी टी क्या गिवन है, डी एक्स बाई डी टी कितना है 1/12। थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखो क्या आता है। लास्ट में x और थीटा का वैल्यू भी गिवन है, व्हेन x इक्वल्स टू 12 मीटर और थीटा इक्वल्स टू π/4, पुट कर दो डी ए बाई डी टी, ऐसे लिखो
x इक्वल्स टू 12 कॉमा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पुट कर दो यहां पर ही. दैट मीन्स हाफ x स्क्वायर दैट मीन्स 12 स्क्वायर cos पाई बाई 4 पाई बाई 180 प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू x बाई 6. ठीक है. अब सबका वैल्यू बिठाओ और हाफ 144 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 180 प्लस 1 बाई रूट 2 इंटू. अच्छा यहां पर x बाई 6, ये x का वैल्यू तो 12 है. x का वैल्यू क्या है 12 है ना. सो दैट मीन्स 2. ठीक है. बस अब कैलकुलेशन करो देखो कितना आ रहा है आंसर. वही होगा डी बाई डी टी. एरिया है दैट मीन्स मीटर स्क्वायर पर आवर होगा है कि नहीं. एरिया है ना तो ऑब्वियसली यूनिट जो है उसके ऊपर तो स्क्वायर तो आएगा. ठीक है. तो उसका कैलकुलेशन करो आंसर मिल जाएगा. ठीक है. फिर हो गया. कंप्लीट कर लो उसको. Next, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर मोस्टली रिलेटेड विथ योर डेली लाइफ एक्टिविटीज. ओके. सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. जस्ट राइट. Radius of right circular cylinder. Radius of right circular cylinder. Radius of right circular cylinder. Right circular cylinder increases at the rate. Increases at the rate 0.1 centimeter per minute. Okay. And height decreases and height decreases at the rate 0.2 centimeter per minute. The rate of change of volume. The rate of change of volume. Rate of change of volume in centimeter cube per minute. When the radius when the radius 2 centimeter and height 3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स यहां पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. राइट सर्कुलर सिलेंडर जानते हो ना, बिल्कुल सीधा सिलेंडर. ठीक है, ऐसे तेरा बुरा नहीं होगा. ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर. दैट मीन्स ये हाइट होता है एकदम परपेंडिकुलर, ये बेस होता है. तो यहां पर बोला गया ये सिलेंडर, इसका ये ले लेते हैं आर, बेस रेडियस आर, और उसको ले लेते हैं एच. अब बोला गया यहां पर ये जो लेट रेडियस, बेस रेडियस ऐसे लिख लो, बेस रेडियस इक्वल्स टू आर, हाइट इक्वल्स टू एच, गिवन डी आर बाई डी टी. मतलब यहां पर बेस रेडियस इज चेंजिंग,
दैट मीन्स यहाँ पर रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो है इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये सिलेंडर मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है कि नहीं? दैट मीन्स dr/dt पर मिनट. सो dr/dt इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर पर. ओके, तो यहां पर देखो रेडियस ऐसे बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये मोटा हो रहा है, और इधर जो है हाइट थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हाइट कम हो रहा है. तो दैट मीन्स हाइट का जो चेंजेस होगा वो कम होगा. कम कैसे डिनोट करोगे? dh/dt equals to minus 0.2 centimeter per minute. When the rate of change will be negative, that denotes that actually this value, that means the value, that means increasing, decreasing rate is given. That means the value is decreasing here. Okay, this negative sign denotes the decreasing rate. Okay, and increasing rate, positive sign should be used. So here dh/dt equals to minus 0.2 centimeter per minute. ये आपको given. आपको निकालना क्या? Now the change of volume in centimeter cube per minute में निकालना है. रेडियस 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. अब बोलोगे सर यहाँ पर ये जो रेडियस और हाइट जो है पहले हम लोग अगर बिठा देंगे तो क्या होता है? अगर पहले आप लोग नहीं बिठा सकते हैं. व्हेन के बाद जो पार्ट रहेगा वो ऑल टाइम याद रखना कि एकदम लास्ट पोजीशन में बिठाना है, लास्ट में बिठाना है. यहाँ पर एडवांस नहीं बिठाना है आपको, ठीक है? अगर यहाँ पर आप एडवांस यहाँ पर सब कुछ बिठा देंगे, अगर यहाँ पर एडवांस यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू बिठा देंगे, सब तो कांस्टेंट हो जाएगा. तो हर जगह कांस्टेंट 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 दिखाई देगा, तो डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज, ये सब कहां से निकलेगा? सब तो जीरो निकल जाएगा ना, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है? सो अब जो है सिलेंडर का वॉल्यूम, वी नो दैट V इक्वल्स टू, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. तो dV/dt इक्वल्स टू पाई, लो, आर स्क्वायर इंटू dh/dt. यू भी होगा, आर भी एक फंक्शन है, एच भी एक फंक्शन है, क्योंकि आर भी यहां पर चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है. सो दैट मींस बोथ आर वेरिएबल्स है. एच और आर दोनों में से कोई भी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो आर स्क्वायर एक फंक्शन, एच एक फंक्शन, तो यू इंटू भी प्रोसेस अप्लाई करना है. आर स्क्वायर dh/dt, एच इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस आर, एंड देन आर का डिफरेंशिएशन dr/dt. ओके, नाउ dr/dt इज गिवन, dh/dt is given, r is given. Okay, r equals to 2 centimeter and h equals to 3 centimeter. r भी given है, h भी given है, सब बिठाओ, dv/dt निकल जाएगा, है कि नहीं? सब बिठा दो. तो So dv/dt equals to pi r square, that means 2 square into dh/dt, that means minus 0.2 plus h into h मतलब 3 into 2 into 2 dr/dt means 0.1. बस देखो क्या होता है, पाई 4 into 0.2 सामने माइनस है, प्लस 12 इंटू 0.1, ठीक है? तो यहां पर ये सब काम करो, एक पॉइंट जो है सब उठा दो. ए 12 इंटू 1/10. ओके, बस कैलकुलेशन करो, देखो कितना होता है. पाई यहां पर होगा 5 और यहां पर होगा 6 और 5, -4/5 प्लस 6/5, दैट मीन्स 2π/5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. dv/dt निकल गया. दैट मीन्स वॉल्यूम का रेट क्या है? 2π/5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है?
हो गया, है कि नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये सब मेन और एडवांस का क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी यार जो है आया है ये सब क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए क्यूब आइस मेल्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स शेप at the uniform rate 4 centimeter cube per minute. That means the cube ice melts, गल रहा है, ओके, बट शेप एक है, मतलब यहां पर शेप साइज यहां पर चेंज हो रहा है, बट शेप वो क्यूब शेप ही है कि नहीं? दैट मीन्स एक क्यूबिकल शेप का एक बर्फ रखा हुआ है कि नहीं, जैसे फ्रिज में होता है। अब ये बर्फ जो है गल रहा है, गलने से क्या होता है, उसका साइज छोटा होगा, बट शेप जो है वो क्यूब ही रह जाएगा, है कि नहीं? देखना आप लोग, ठीक है। तो यहां पर यही बोला गया कि क्यूब आइस मेल्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ओके। ए क्यूब आइस मेल्ट्स, जस्ट राइट द क्वेश्चन, ए क्यूब आइस melts, cube ice melts, a cube ice melts, a cube ice melts without changing its shape, without changing its shape at the uniform rate, at the uniform rate 4 centimeter cube per minute. The rate of change of surface area, the rate of change of surface area, rate of change of surface area of the cube in centimeter square per minute आपको निकालना है, ठीक है। when the volume 125 centimeter cube per, when the volume is 125 centimeter cube, मतलब यहां पर एक क्यूबिकल शेप का बर्फ का ये टुकड़ा है। अब ये जस्ट इट्स बिकमिंग मेल्ट्स, ओके। सो दैट मीन्स दिस ice, this cubical ice is melting, okay, but his shapes remain fixed, remains same, his shape, but the size is changing, size is decreasing. So if the size is decreasing, that means what? The volume is decreasing. Agree? Volume is decreasing. So volume decreasing means what? dV by dt, will it be plus or minus? dV by dt 4 centimeter cube per minute. That means here dV by dt equals to minus 4 centimeter cube per minute. That means volume यहाँ पर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, that means माइनस साइन यूज करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? So dV by dt equals to minus 4 centimeter cube per minute, कम हो रहा है। dV by dt ये गिवन है। फिर मुझे निकालना है, we have to find the rate of change of the surface area of that particular shape, of that particular cubical ice, okay? तो यहाँ पर ऑब्वियसली वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया भी तो चेंज होगा, लेकिन सरफेस एरिया भी तो कम होता रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, है कि नहीं? मेल्ट हो रहा है तो, है कि नहीं? जम नहीं रहा है, यहाँ पर फ्रीज नहीं हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, दैट मींस गल रहा है, तो ऑल द साइजेस विल बी चेंज्ड, विल बी डिक्रीज्ड हियर, okay, whatever the it is, whatever the size it is, just cubical, cuboid, and whatever the size it is, just main thing is that concisely you can say, if anything melts, that means what? The size will be changed and size will be decreased as well, okay? So here we know that
v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब होता है कि नहीं। यहां पर v dv बाई dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई dt है कि नहीं, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सरफेस एरिया का मुझे निकालना है, ठीक है, दैट मींस ds बाई dt इसको निकालना है। सो s इक्वल्स टू क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6x स्क्वायर। सो दैट मींस ds बाई dt इक्वल्स टू 6 इंटू ट्वाइस x इंटू dx बाई dt, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रखा, ओके, ठीक है। नाउ इफ द वॉल्यूम, लास्ट पार्ट में अब तो वैल्यूज पुट करना है, dx बाई dt का वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, x का वैल्यू भी यहां पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये सब वैल्यूज मैं कहां से निकालूं कि वो ds बाई dt निकालना है मुझे। अच्छा, यहां पर सिर्फ वैल्यू मुझे पता है क्या, dv बाई dt का वैल्यू पता है -4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ओके। सिर्फ मुझे इस चीज का वैल्यू पता है, तो x का वैल्यू पता नहीं। तो इफ द वॉल्यूम v इक्वल्स टू 125, दैट मींस x क्यूब इक्वल्स टू 125, दैट मींस x इक्वल्स टू व्हाट 5 सेंटीमीटर होगा शायद। x का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। तो अब आओ देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt निकालना है ना, तो 12 इंटू, देखो यहां पर एक काम करते हैं, ये 12 है ना, तो इसको क्या करते हैं 12 4 इंटू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ठीक है, बाई x ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो x x कैंसिल हो जाएगा, एक x रहेगा, 12x dx बाई dt आ रहा है ना, सजा के लिख रहा हूं। अब इसके जगह में dv बाई dt लिख सकते हैं ना, dv बाई dt, देखो तो 4 इंटू dv बाई dt और बाई x तो अभी भी निकाला है मैंने 5, है कि नहीं। सो दैट मींस ds बाई dt इक्वल्स टू 4 बाई 5 इंटू dv बाई dt मतलब क्या है -4, लो दैट मींस -16 बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दैट मींस यहां पर ds बाई dt सरफेस एरिया भी डिक्रीज होगा, सो नेगेटिव साइन तो आएगा यहां पर, है कि नहीं। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत आपको यहां पर दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ओके। x का वैल्यू यहां पर क्यों निकाला है हम लोगों ने, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू चाहिए। We need to find the value of x because here this x value is required. Okay, you need to put the value of x here. So if you want to get the x value, then this is the only way how to find this. It is the only way that you can find the value of x by using this thing. Okay, so this is the answer. Okay, fail. Nico, a man is moving away from a tower. A man is moving away from a tower. A man is moving away from a tower 41.6 meter high. 41.6 meter high at a rate of 2 meter per second. At a rate of 2 meter per second. यहाँ पर a man is moving away from a tower 41.6 meter high at a rate of 2 meter per second if the eye level
of the man is 1.6 meter above the ground, then the rate at which the rate at which the angle of elevation of the top of the tower changes when he is 30 meter from the foot of टावर। मतलब है यहां पर एक टावर है, ठीक है, टावर है, ये है टावर, ठीक है। टावर का लेंथ यहां पर 41.6 मीटर गिवन है। यहां पर एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका हाइट है 1.6 मीटर। कैसे समझ में आया ये हाइट है? क्योंकि द आई लेवल इज द 1.6 मीटर अबव द ग्राउंड। दैट मीन्स व्हाट? आई लेवल। तो मेरा आई लेवल ग्राउंड से 1.6 मीटर है, दैट मीन्स ये इज द ऑलमोस्ट हाइट, ठीक है। आई लेवल ग्राउंड से 1.6 मीटर, दैट मीन्स मेरा हाइट 1.6 मीटर है कि नहीं? सो दैट मीन्स द मैन्स हाइट इज 1.6 मीटर। अब क्या कर रहा है ये मैन जो है, ये टावर का जो टॉप है उसको देख रहा है यहां से, है कि नहीं? तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए ऐसा एक बेस आपको इमेजिनरी बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा। तो ये क्या होगा? ये शायद 40 होगा, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर 40 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर थीटा है। आपको निकालना क्या है यहां पर? एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स ये इंसान मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, दैट मीन्स ये दूर जा रहा है। तो जैसे ये लाइट है, अगर मैं जैसे यहां से मैं ऐसे देख रहा हूं, है कि नहीं? अब जितना मैं दूर जाऊंगा उतना ही तो एंगल ऐसा होता रहेगा ना, है कि नहीं? देखो अभी ऐसा है, जितना मैं दूर जाऊंगा एंगल कम होता रहेगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द टावर, दैट मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी डिक्रीज्ड। डी थीटा बाई डी टी आपको निकालना है, उसका डिक्रीजिंग रेट निकालना है, ठीक है। लैंप पोस्ट और ये तुम खड़े हो, यहां से लैंप पोस्ट जितना दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ऐसा था, जितना दूर जाओगे उतना कम होता रहेगा ना, देखो, है कि नहीं? सो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज निकालना है, दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टी निकालना है, और वो भी डिक्रीजिंग रेट, दैट मीन्स माइनस साइन एक तो आएगा सामने, ठीक है। ओके, तो यहां पर गिवन जो है वो लिख लो, नाम दे दो ए बी सी। ओके, ये x ले लो, ये x, ठीक है। यहां पर ये मूविंग अवे फ्रॉम द टावर एट द हाइट ऑफ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये जो इंसान दूर जा रहा है, दैट मीन्स dx by dt गिवन है कि नहीं? हियर dx by, हियर ऐसे लिख लो, लेट bc इक्वल्स टू x, सो dx by dt इक्वल्स टू
2 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी ये हम लोग को यहां पर निकालना है। ए बी इक्वल्स टू कितना है 40 मीटर, ठीक है। नाउ फॉर ट्राइंगल एबीसी, देखो तो tan थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई बेस, दैट मीन्स 40 बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, है। तो यहां पर tan थीटा का दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 40 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। देखो तो ठीक है कि नहीं, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा है, थीटा का होगा यहां पर डी थीटा बाई डी टी, 40 बाई एक्स, 40 तो कांस्टेंट, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड। अब सेक स्क्वायर थीटा का क्या करें, बोलो सेक स्क्वायर थीटा का क्या करें, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा का तो कुछ भी वैल्यू नहीं है पता है यहां पर, तो ऐसे लिख लो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 40 बाई एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, यहां पर डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स माइनस 40 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 40 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। लो अब एक्स का वैल्यू भी लास्ट में कुछ गिवन है शायद 30 है, एक्स का वैल्यू गिवन है ना 30 मीटर, है कि नहीं। लास्ट में देखो जब यहां पर एक्स का वैल्यू 30 मीटर हो जाए तब एंगल ऑफ एलिवेशन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो आपको निकालना है। सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू 30 मीटर, बस बिठा दो डी थीटा बाई डी टी, थीटा इक्वल्स टू सॉरी एक्स इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स बिठाओ बस माइनस 40 बाई 30 स्क्वायर 1 प्लस 40 स्क्वायर बाई 30 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, मतलब 2 है कि नहीं, 2 है बस। तो अब तो कैलकुलेशन करना है, माइनस 40 बाई 900 प्लस 1600 बाई 900 इंटू 2, which is minus 80 by 900 into 900 by क्या होगा 2500, ठीक है। लो यहां पर क्या आएगा -8 बाई 250, -8 बाई 250 रेडियन पर मिनट, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां पर और भी थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ये 4 ये 125, -4 बाई 125 रेडियन पर आवर, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम होता रहेगा जितना तुम पीछे जाओगे लैंप का, सामने इतना आओगे उतना ही, यहाँ पर लैंप है, यहाँ पर लैंप है, यहाँ पर तुम हो, जितना सामने आओगे ये एंगल पहले ऐसा था, जितना सामने आओगे एंगल ऑफ एलिवेशन तो बढ़ता रहेगा, जितना दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता रहेगा। तो यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो कम हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। So these are the questions from the rate of change chapters. So in this lecture, the 6 questions were solved, and just in the last lecture, just we will solve the different questions again from this rate of change application of differentiation chapter. So this is the starting, and I think 2-3 lectures will be sufficient for rate of measure. Then after that, the rest of the chapters will be continued from the application of differentiation chapter. So no need to worry about that. Just all the things and all the concepts will be discussed, and all the actually properties will be discussed. And just you need to solve this type of questions. You need to view the lectures properly and with very much attention and very religiously also. Okay, so that you will be confident while you are solving this type of questions in the nearest future.
ओके सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड जस्ट इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक माई लेक्चर्स, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल फॉर बेटर एक्सपीरियंसिंग. ओके, एंड जस्ट इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू लाइक माई वीडियोज, देन आई थिंक आई विल बी मोटिवेटेड more and more, and I think in the nearest future I will upload this type of videos, okay, more and more. Okay, thank you very much. Thank you for joining the classes. Bye. Jai Hind.